Time reference is very important. Let's start tenses. Tense means time, and it is a very important topic of English grammar. It is said that your grammar is not your if your grammar is not strong, and if you don't know tenses in English grammar, then you are believed to be unable to speak in English fluently, which is a false notion. If you don't, whether you know tenses or you don't know it doesn't affect your speakability. I mean, you can still communicate fluently in English whether you know if you don't know grammar. But to be very much well versed with grammar or conversant with grammar rules and tenses, uh, makes us very, a good communicator. And we can identify sentences, we can identify the time reference in the sentence, and we can make our own sentences. तो क्या होता है कि टेंस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ टाइम, एंड विच मीन्स, और वाई टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, बिकॉज हमारी आवर लाइफ इज़ टाइम बाउंड. From birth till death, we are living in a time zone. We have to complete a time zone on earth, and then we have to depart. So all our activities are time bound. That's why our sentences are like you say कि मैं कल वहाँ जा रहा था या मैं कल वहाँ गया था. तो जब भी आपका हर स्टेटमेंट टाइम से बंधा हुआ था, आपकी हर एक्टिविटी टाइम से बंधी हुई है बेटा. That's why, and that's how the concept of tense becomes very important when we learn English grammar. And time reference, and this time reference and this tense is reflected or represented by the verb forms in a sentence. जो भी टेंस होता है, जो भी टेंस है या टाइम रेफरेंस है, टाइम सीक्वेंस है, वो वर्ब से ही पता पड़ता है, वो किसी भी सेंटेंस में होता है. So there are 3 major time references. There are 3 major time references. There are 3 major time references in English grammar, which are present, past, and future. These are 3 major time sequences, major time references. Either you will refer to past action, past event, or you will refer a present event or you will refer a future event. But all these past, present, and future events are also equally subdivided into 4 sub time categories, sub time sequences. These major time sequences are further divided into these into 4 sub time sequences or time references. ठीक है, तो यहाँ तक आप समझिए पहले तो कि भाई टेंस क्या है. टेंस मीन्स टाइम सीक्वेंस, टाइम रेफरेंस ऑफ टाइम, और all our activities are live or has some reference of time. When we perform our activity either daily or we refer to some actions which are continuous at the time of speaking, or we refer to some actions which are completed already. Okay, and when the already completed action is given past time, that action goes into past tense. Yes, so time reference is very much important in English grammar. So tense means sequence of time. So first, Yes, then sir. these subsequences are indefinite,
tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. So these are the subsequences. There are three major sequences which are present, past, and future, and subsequences are in four subsequences are there, which means indefinite tense, continuous tense, perfect tense, and perfect continuous tense. It means we have four times four. It means we have 12 time sequences in English grammar. Major time references are divided into 4 subtimes, so 3 4s are 12. So 12 time references are there in English grammar. It means if we discuss present tense right now, we have to discuss all 4 subcategories of present tense. And each major time reference is divided into 4 sub time references. यहाँ तक clear है? Yes, sir. Tense is derived from Latin word tempus. Tense is derived from Latin word tempus. There is a word in Latin language which is read as tempus, which means time sequence. Tempus, that means time sequence. तो इस टेम्पस से ही आपका टेंस की कॉन्सेप्ट आया है बेटा. यस सर. ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या आपको? बताओ, मतलब समझ बेसिक मतलब एक भूमिका से समझाइए बेटा कि भाई टेंस है क्या चीज़. वाई वी स्टडी टेंस, वाई टेंस इज बिलीव, वाई इज the situation there, why is there a situation when people find it difficult to learn tenses. Okay, so tense means time. तो अब आपको टाइम का ही ध्यान रखना है बेटा. ठीक है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को हम टाइम में बांट के देखेंगे, और टाइम का ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अब आगे. फर्स्ट टेंस दैट वी टेक इज प्रेजेंट simple tense, which is also called indefinite tense. The first tense is present indefinite tense. Look at the structure of this sentence in this tense structure. We have structure in 4 sentence types: positive, subject, verb first form, yes, plus object complement, and object and complement, yes. Negative, subject plus V first form. V फर्स्ट फॉर्म को मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ इसमें. प्लस nobody is saying that I am making a mistake. So does plus not plus first form plus object complement, then
object complement. Yes. The third one is interrogative. Here we will have the structure do does plus subject plus V first form plus object complement and question mark. And fourth one will have interrogative negative. Interrogative negative, which means do does, which has a structure of do does plus subject plus not plus verb first form plus object complement question mark. So these are the four structure of present simple tense, which is also called present indefinite tense. We have some concord here, subject verb agreement like this here, subject verb agreement. Verb agreement of this tense is like this, singular subject plus singular verb, plural subject plus plural verb. एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं. यस, आई वी यू दे and plural subjects plus simple verb first form. Yes, nothing will be added to verb, nothing will be added. SES do does कुछ भी नहीं लगेगा बेटा. अगर do लगेगा, अगर इंटरोगेटिव होगा तो नेगेटिव होगा, तो बाकी कुछ नहीं लगेगा. ठीक है. और फिर देखिए, और है ना, यहाँ पर देखिए आगे he she it, he she it of the singular subject plus verb we verb first form plus s या es. Whenever you add s or es to verb, the verb becomes complex verb. Verb first form without s या es is called simple verb, and whenever you add s या es or add any helping verb to verb, it becomes complex verb group. Transitive verb. नहीं वो that rule will not be discussed here, transitive or intransitive. Plural plus do plus not. He she it singular subject plus does plus not. Yes, I we you they is followed by do as helping verb, and he she it singular subject are followed by does not in negative, interrogative, negative sentences. This is the subject verb agreement of present simple tense. Singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. I, we, you, they, plural subjects plus simple verb. You will not add, you don't have to add any extra s or es to verb when you are speaking a present simple tense sentence in with I, we, you, they. When the subjects are he, she, it or singular any third person name, then you will add s or es to verb in the positive sentences. Fine.
इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बेटा, ये बताइए। क्लियर है सर। यस सर। यहाँ Yes, तक कोई sir. डाउट तो नहीं है? फिर देखिए Okay. बेटा, आगे अपन देखते हैं, कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कुछ एक, है ना। आई टीच इंग्लिश। इंग्लिश Simple है sir ये. है ना। Present simple. वी टीच इंग्लिश। सर ये S नहीं आएगा टीच के बाद में. नहीं आएगा बेटा, प्लूरल में नहीं आता है। प्लूरल है ना। He goes, she goes. We teach English, you teach English, they teach English, people teach English. This is I, we, you, they simple verb. The same Yes. sentence we are converting into let's have some more sentences, you know, then we move further. English, you look at this, he teaches English, she teaches English, नेट की वजह से पता नहीं पड़ रहा है कि टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ सर वो पूरा होने के बाद दिखता है. हाँ, इट टीचेस इंग्लिश, राम टीचेस इंग्लिश, now we make negative sentences. I do not teach English. We do not teach English. You do not teach English. Yes. They do not teach English. People do not teach English. He does not teach English. She does not teach English. It does not teach English. Ram does not teach English. ये आपके सेंटेंस हो गए अप टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नाउ यू विल मेक इंट्रोगेटिव। डू आई टीच इंग्लिश? Do I teach English? Do we teach English? Do you teach English? Do they teach English? Do people teach
people teach English? Does he teach English? अब इन सब में गलती हो रही है मेरे से, जो आप बता नहीं रहे हो मेरे को, क्वेश्चन मार्क लगेगा सब में. Yes. यस Does he teach English? Does she teach English? Does it teach English? Does Ram teach English? ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गए बेटा. डू आई, डू वी, डू यू, डू दे, डू पीपल, डज ही, डज शी, डज इट, डज राम. ठीक है. अब अपन बनाएंगे डज नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. डू आई नॉट टीच इंग्लिश? डू आई, डू वी नॉट टीच इंग्लिश? Do you not teach English? Sorry, क्वेश्चन मार्क आएगा सब में. Yes, sir. Yes. क्वेश्चन मार्क आएगा. वो क्या टाइप पे, ये स्लो टाइपिंग हो रही है ना, इसके थोड़ा मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ. डू दे नॉट टीच इंग्लिश? Question mark. Do people not teach English? People हो गया. Does he not teach English? Does she not teach English? Does it not teach English? Question. Does Ram, क्या हुआ? Not teach English? Question mark. Okay, these are the 9 4s are 36 sentences. Okay, so look at the sentence. एक बार once you all read the sentences once time. Let me read first and then you read. Okay, all these are the present simple sentences. I teach English, we teach English, you teach English, they teach English, people teach English, he teaches English, she teaches English, it teaches English, Ram teaches English, I do not teach English, we do not teach English, you do not teach English, they do not teach English, people do not teach English, he does not teach English, she does not teach English, it does not teach English, Ram does not teach English. Do I teach English? Do we teach English? Do you teach English? Do they teach English? Do people teach English? Does he teach English? Does she teach English? Does it teach English? Does Ram teach English? Do I teach English? Do I not teach English? Do we not teach English? Do you not teach English? Do they not teach English? Do people not teach English? Does he not teach English? Does she not teach English? Does it not teach English? Does Ram not teach English? This way you have to make your own drills. You have to make as many sentences as you can by just applying the structures.
Yes, sir. by just applying subject words on these structures, okay, in the present simple tense. तो आपको अभी एक बार थोड़ा रीडिंग कीजिए सर, कोई कौन रीडिंग करेगा, करिए रीडिंग। मैं करूँ? हाँ करो करो, कोई भी कर दो बेटा। आपकी स्क्रीन से करता हूँ सर मैं। मेरे स्क्रीन से। Yes. I teach English, we teach English, you teach English, they teach English, people teach English, he teaches English, she teaches English, it teaches English. Your voice is not coming. Am I audible, sir? No, not audible. Your very low voice is coming. Very low voice. Let me check, sir. अब क्लियर है सर? चलो पढ़ो, फिर पूरा कंप्लीट करो उसको। यही सर, वापस रिपीट करो। नहीं आगे जहाँ पे भी हो जितना हो गया उतना कर दो, चलो। नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। ओके, सो चलो ठीक है, रुको। Now this is the practice that you have to do. You have to make unlimited sentences of your own present simple tense. You can make, why we are making sentences, because we have to make ourselves habitual of speaking in present simple tense. Our mouth organs are not conditioned to speak in English, so we have to condition our mouth organs. We have to train our mouth organs to speak in English and in terms of present simple tense. In all the tenses we will have the same practice of making sentences and reading them once in a day. Do not cram them. उनको रटना नहीं है, ठीक है, दिन की एक रीडिंग करनी है बस। In the same way as I did, I have just done. In the same way as I have just done. तो ठीक है, आपको बस सिंपल एक रीडिंग करनी है बस। अपने सेंटेंस जितने बना सको उतने बनाओ। स्ट्रक्चर दे दिया आपको, कॉनकोड समझा दिया, सब्जेक्ट वर्ब समझा दिया। स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने, सब पॉजिटिव स्ट्रक्चर, पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर आर देयर प्रेजेंट सिंपल टेंस। देन वी हैव आई हैव आल्सो टोल्ड यू सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, and then you have to just arrange the words here in the structure: subject, verb and object complement. Yes, sir. है ना। तो मेक एज मैनी सेंटेंस एज यू कैन। फ्री टाइम मिले आप उतने जितने सेंटेंस बना सके बनाइए, बोलिए, ठीक है। आप लिखिए। आप एक चीज़ याद रखिएगा, अपने यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स डाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये है we do not use B type auxiliary verbs in present simple tense. नेट की वजह से टाइपिंग बहुत स्लो हो रही है। वी डू नॉट यूज़ एनी बी टाइप ऑक्सिलरी, है ना। बी टाइप ऑक्सिलरी का यूज़ नहीं करते बेटा इस टेंस में। ऑक्सिलरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट जो है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड in 3 verb references, or you can say three types of action references, 3 types of action references, ठीक है। क्या 3 टाइप्स ऑफ एक्शन रेफरेंस क्या क्या है, कोई बता सकता है आप में से? क्या सर? क्या कह रहे हैं सर आप? मैं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस 3 जगह काम आता है, मतलब 3 तरह के एक्शन में काम आता है। When you are expressing a universal truth, रिचुअल वगैरह वो यूनिवर्सल ट्रूथ,
यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक ट्रुथ। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस 3 जगह काम आता है। पहला होता है आप सच बोल रहे हो, जो मतलब कोई भी शाश्वत सत्य हो जो जो कभी नहीं बदलता है, ऐसा स्टेटमेंट जब भी होता है उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है बेटा। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, राउंड द सन। द मून शाइन्स इन नाइट। द साइंटिफिक ट्रूथ बोल, साइंटिफिक ट्रूथ कोई बोलेगा एग्जाम्पल दो, साइंटिफिक ट्रूथ एग्जाम्पल दोगे आप लोग में से कोई साइंस का ऐसा स्टेटमेंट हो कोई? ड्यू सन राइजेस इन द ईस्ट। नहीं, ड्यू टू ग्रेविटी everything falls Hold on. down to earth। On earth. ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से हर चीज नीचे पृथ्वी पर गिरती है। Yes, sir. The full moon causes tides in the sea। कॉजेस, यहाँ पे कॉजेस हो गए। जो ज्वार भाटे आते हैं ना पानी में, जो लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं बेटा, वो चंद्रमा की वजह से होता है। Yes, sir. ठीक है, तो ये सारे के सारे यूनिवर्सल फैक्ट है बेटा। ये सारे Yes, के sir. सारे क्या है? यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, फिर है बेटा व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग यूनिवर्सल ट्रूथ एंड साइंटिफिक ट्रूथ। सेकंड इज व्हेन you are expressing about your profession or occupation। जब कोई आपसे आपका काम पूछे, काम धंधा पूछे, जीविका के लिए क्या करते हो, तो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करोगे बेटा। Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखो कुछ भी बात हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है कि भाई मैं मान लो मैंने पूछा कि क्या करते हो भाई, तो आई स्टडी इंजीनियरिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। यू विल से आई स्टडी नर्सिंग, आई परस्यू नर्सिंग। ठीक है, तो वो प्रेजेंट सिंपल में बोलोगे बेटा आप, ये नहीं बोलोगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, Yes, sir. आई टीच इंग्लिश इन अ कॉलेज। मतलब सर अपन lecturer जैसे बोलते हैं कि आई एम परस्यूइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, from परस्यूइंग BIT. बोल रहे हैं कि परस्यूइंग बोल रहे हैं, करंट रेफरेंस बोल रहे हैं बेटा, लेकिन व्हेन इट इज यू नो सेड इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, Yes, sir. ये ना, ये तो वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा बेटा। Okay. ठीक है, आई टीच इंग्लिश इन अ कॉलेज, शी प्रैक्टिसेस मेडिसिन in her clinic, means she is a doctor। Yes. ठीक है he practices law in the high court at जोधपुर। बोलते ना हाई कोर्ट का लॉयर है, Yes, sir. Yes, sir. तो ये वो लॉ की प्रैक्टिस कर रहे होते बेटा, Yes, sir. है ना। तो व्हेन यू यूज अ वर्ब फॉर लॉयर और डॉक्टर, यू विल यूज प्रैक्टिसिंग मेडिसिन प्रैक्टिशनर और लॉ प्रैक्टिशनर। Yes, sir. ठीक है,
और एग्जांपल देखिए इसके, आई टीच इन स्कूल, और एग्जांपल बता सकते हैं, जैसे ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, ही वर्क्स इन अ फैक्ट्री, they repair shoes, वो जूते ठीक करते हैं, है ना। ऐसे जब भी आपसे कोई अपना जॉब पूछेगा, ऑक्यूपेशन पूछेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस में बोलोगे हमेशा, Yes, sir. है ना। अगर आप कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर रहे हो तो मीन्स यू आर टेलिंग देम अबाउट टेम्पररी जॉब, टेम्पररी और आवरली जॉब है कि अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो वो पेड जॉब जो नहीं होती बेटा, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ अभी, तो वो ऑक्यूपेशन नहीं है। आप एमेच्योरली जो भी एक्शन करते हो वो ऑक्यूपेशन नहीं होती बेटा। ऑक्यूपेशन इज ऑलवेज समथिंग दैट यू आर बीइंग पेड फॉर। ऑक्यूपेशन वो चीज़ होती है जिससे आपको अपना घर चलाने के लिए पैसा मिलता है बेटा, यस सर, वो आपका जीविका होता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज व्हेन यू रेफर टू एन एक्शन which is repeated at intervals or when you mention the price and rate of something, ठीक है। देखिए थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझिए। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई एक्टिविटी है जो दिन में, एक महीने में 4 बार करते हो, दिन में 2 बार करते हो, या खाना दिन में 2 बार खाते हो या 3 बार खाते हो, या दवाई दिन में 3 बार लेते हो, तो व्हेन एन एक्शन इज बीइंग रिपीटेड बाय यू, व्हेन यू रिपीट एन एक्शन, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे आप, यस सर, ठीक है। और जैसे आपने क्या किया, आपने कोई चीज़ नहीं खरीदी, उसकी कीमत बता रहे हो, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे आप। गाड़ी की माइलेज एवरेज बताने के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे आप। यस ये 3 पॉइंट समझ में आ रहे हैं बेटा। ये 3 जगह पर ही आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होता है बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ में, ऑक्यूपेशन बताने में, और फ्रीक्वेंसी और रेट बताने में बेटा, यस सर, ठीक है। यस सर। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, कोई डाउट, कुछ भी तरह किसी भी तरह डाउट हो तो पूछो। थोड़ा क्या ये नेट की स्पीड के टाइपिंग थोड़ा स्लो हो रहा है सर, मेरा भी क्या फ्लो टूट रहा है। यस सर, सर कोई सर थर्ड वाले का एग्जांपल दे दीजिए। हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ एग्जाम्पल देना ही है बेटा। मैं थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा भूल गया था, मैं समझाने में। देखिए एग्जाम्पल देखिए बेटा इसका, ये है आई वॉच, यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे बोलते हैं कि इसको इस तरह से, आई प्ले फुटबॉल एवरी फ्राइडे at the playground, ठीक है। she comes to see us every Sunday, वो हमसे मिलने हर रविवार को आती है। 1 महीने में 4 रविवार, तो मतलब 4 बार आती है, ठीक है। और एग्जांपल देखिए इसके, she takes the medicine thrice a day, दिन में 3 बार दवाई लेते हैं, है ना। ओके सर। है
है ना, ये इस तरह के एग्जांपल है। थ्राइस, ट्वाइस, 4 टाइम्स अ डे, 4 टाइम्स अ मंथ, 4 टाइम्स अ ईयर। यस, द फुल मून नाइट falls once every month, है ना। एक महीने में एक बार तो फुल मून नाइट आती है यस है ना। तो कितनी बार आप एक्टिविटी करते हो बेटा, वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा, स्ट्रिक्टली प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ होगा। अब रेट देखिए, माई शर्ट कॉस्ट्स $50, ठीक है। माई वॉच कॉस्ट्स मोर देन योर कार, ठीक है। कभी किसी को नीचा दिखाना होता है ना पैसों के मामले में, उसको बोलते हैं ऐसा कि मेरी घड़ी तेरे कार से महंगी है, यस सर। यस सर है ना। तो 8 लाख की कार में बैठा है, मैं 8 लाख कलाई में लपेट के बैठा हूँ। कौन है सर ऐसा? बहुत है बेटा, बिल गेट्स वगैरह है, बहुत सारे, एलॉन मस्क है, बिल गेट्स है, जो मार्क क्यूबन है, विटालिक ब्यूटेरिन है ना, सतोशी नाकामोटो है, बहुत सारे बेटा, बहुत सारे, यस दुनिया भरी पड़ी है सर। बेटा। लेकिन Bill एक Gates। चीज देखिए सर, ये सिंपलिसिटी में ज्यादा रहता है सर ये। नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, जैसे वो तो बहुत अच्छी बात है। वो दिखाते नहीं है दुनिया को, ये दिखाते हैं कि मैं गरीब हूँ, यस सर। है ना। नहीं सर, अधिकतर यही देखा है, जैसे अपने जैसे पिलानी है सर यहाँ पे, मतलब कितने सर ये जैसे शादी वगैरह हुई थी ना सर, ये इसकी ये अंबानी की लड़की की शादी हुई थी ना सर ये। हाँ हाँ तो सर मतलब ये जो पिरामल का लड़का है ना सर, अजय हाँ हाँ पिरामल, हाँ हाँ तो सर वो मतलब झुंझुनू से वो बगड़ है ना सर, वो गांव है, हाँ। वहाँ पे की थी सर। मतलब शादी करने के बाद यहाँ पे अपने पैतृक गांव लेके आए थे अच्छा अच्छा। उसको, ईशा अंबानी को। तो सर एकदम सिंपलिसिटी जैसे अपन लोग करते हैं ना सर शादी वगैरह, तो एकदम वही अच्छा लगता है। देखो, जिसके पास बहुत होता है ना, वो समझ जाता है कि यार चीज़ की वो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। यस सर। जिसके पास नहीं होता ना, वही ज़्यादा मतलब दिखावे में रहता है, मतलब जिसको नया नया मिलता है या पैतृक मिलता सर है बस इसको। भगवान एक बार सर भगवान इतना एक बार दे देता कि हम भी फिर समझने लग जाए ऐसे। नहीं, देगा बेटा, देगा। अभी तो आप शुरू कर रहे हो अपना करियर, देगा आपको। अभी तो एकदम से तो देखो, कम उम्र में मिलेगा ना, तो आप उसकी कदर नहीं करोगे। तो पूरा आपको सबक सिखा कर, तोड़ मरोड़ कर, मार पीट कर, तपा कर, सोना बनाकर देगा ना, तब ज़्यादा आप कदर करोगे उसकी। ठोकरे लगा ला के, है ना। तो देखो, अकल ठोकरे खाने से आती है, यस सर। नॉट ईट आलमंड। है ना। और अभाव में ही प्रभाव का जन्म होता है, यस सर। ठीक है। तो आप देखिए, अधिकतर कहानियाँ आईएएस ऑफिसर्स की होती है, वो गरीबी में उन्होंने स्ट्रगल किया खूब। ऐसी कहानियाँ आ रही है कि घड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, है ना, और भाई आज आईएएस है। नहीं सर, ये मतलब डेली आती रहती है सर कि पुलिस करने वाले का लड़का ये बना, रिक्शा हाँ, चलाने वाले का तो वही तो बोल रहा हूँ, अभाव में ही प्रभाव का जन्म होता है बेटा। यस सर यस सर Yes, sir। नहीं सर, जिसके पास कमी होती है वही समझ सकता है सर। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ बेटा। अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी में प्रभाव लाना है, इन्फ्लुएंस लाना है ना, अपन पावर डेवलप करना है, तो बेटा वो पावर बाप के दम पर या बाप के पैसों के दम पर नहीं होनी है। यस सर। यस जब सर तक आप समझ खुद रहा हूँ को सर। मार्केट में डालो, मार्केट में घुसाओगे नहीं, मार्केट में नहीं उतरोगे अकेले, अपने नॉलेज के दम पर, डांट नहीं खाओगे अपने सीनियर्स की, सुपीरियर्स की, तपाओगे नहीं, आपको धूप में भिगाओगे नहीं, बरसात में धूप में तपाओगे नहीं, और सर्दी में जमाओगे नहीं, तो बिलीव मी आप लोगों को सॉफ्ट बन के रह जाओगे। सॉफ्टी बच्चे नहीं होते, बहुत सारे सॉफ्टी होते हैं, प्ले बॉय टाइप मम्माज के, बॉय सर, मम्माज बॉय। ममाज बॉय, प्ले बॉय टाइप के बच्चे होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते, वो बन जाएंगे बेटा। यस सर। और वो बनी बनना है कभी भी। यस सर। तो क्या करो, थोड़ा हरियाणा जाओ और अखाड़ा ज्वाइन कर लो मल्लों का। नहीं सर, पास में ही है सर, 15 किलोमीटर दूर ही है सर हरियाणा। अच्छा अच्छा अच्छा। पिलानी से सर 15 किलोमीटर की वो हरियाणा हाँ। की बॉर्डर स्टार्ट हो वो जाता है। ज्वाइन कर लो थोड़ा, तो तपाओ यार अपने आप को ना, ठीक है। चलो, ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस के तीन तरह के यूसेज बता दिए मैंने आपको। यूनिवर्सल ट्रूथ,
फैक्ट है, जो जो बात मैथमेटिकली प्रूव्ड फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूव्ड फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो प्रेजेंट सिंपल में एक्सप्रेस होगा। अगर आप किसी को अपना प्रोफेशन बता रहे हो, जॉब बता रहे हो, धंधा बता रहे हो, ऑक्यूपेशन बता रहे हो, तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे वहाँ पर आप। और अगर आप कोई एक्टिविटी ऐसी है जो आप बार बार करते हो, फ्रीक्वेंसी है इसकी, एक बार, दो बार, तीन बार, महीने में कई बार करते हो, तो वो आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताओगे। अपनी गाड़ियों की, अपनी कमोडिटीज़ की, अपनी पोजीशंस की जो रेट बताओगे, प्राइस बताओगे, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बताया जाएगा बेटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ रिकॉग्निशन वर्ड्स देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के। लेट्स लुक एट रिकॉग्निशन वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। रिकॉग्निशन वर्ड्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। नेट बहुत सही है, टाइपिंग क्यों नहीं आ रही मेरी? नेट स्लो शो नहीं हो रही है सर, टाइपिंग अभी शो हुई। मैं बोल भी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, और मैं इसको वो करना, तो नेट पे आते ही सब ये वर्ड आते हैं फिर नेट पर। अरे टाइपिंग क्यों नहीं होती? सर एमएस वर्ड है ना सर आपके पास? हाँ, इसके अंदर वो सही रहेगा सर आज के लिए। ठीक है, देखिए रिकॉग्निशन वर्ड्स देख लीजिए बेटा। प्रेजेंट सिंपल टेंस सारी रेगुलर एक्टिविटीज़ को, डेली होने वाली एक्टिविटीज़ को, हैबिचुअल एक्शन को, प्रेजेंट में हैबिचुअल एक्शन को शो करता है बेटा। प्रेजेंट रेफरेंस में हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो वर्ड्स भी ऐसे होते हैं, जनरली, सेल्डम, डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, यूजुअली, समटाइम्स। आ तो जाए, ये दिक्कत तो सही। रेगुलरली, जनरली, डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, रेगुलरली, यूजुअली, है ना, फ्रीक्वेंटली, मोस्टली, कॉमनली, एवरी, शाबाश, कॉमनली, है ना, कॉमनली, और बताइए, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ठीक है, ऑफ्टन, रेगुलरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, मोस्टली, एवरी, कॉमन, बताओ और बताओ। Sometimes it happens, sometimes, every times, every आ गया बेटा, every आ गया ना, तो every times हो जाएगा आपका। और बताइए, और वर्ड बताइए। डेली, यूजुअली यही होते हैं सर वैसे, है ना, तो और मोस्टली और भी अगर ऐसे एल वाई आए ना, ऑल भी जो कि प्रेजेंट की तरफ इशारा करते हैं, तो वो आप ले सकते हो बेटा। यस सर। ठीक है, तो ये वर्ड्स जहाँ पर भी आएंगे, ऑल, जनरली, डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, रेगुलरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, मोस्टली, एवरी, कॉमनली, समटाइम्स, है ना, तो इनको यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करोगे इस वर्ड्स के साथ में। तो पहले बताओ कि यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आपको? यस सर। किसी का डाउट हो तो बताओ, क्योंकि थोड़ा शुरुआत में थोड़ा गड़बड़ हुआ था मेरा, बाकी भी नेट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है अभी। तो नहीं सर, ऐसा कोई इशू नहीं था। नहीं है ऐसा इशू? तो बेटा अब बताओ कि कितने सेंटेंस आप बना लोगे अपनी तरफ से इस तरह के ड्रिल्स वाले सेंटेंस, और डिफरेंट वर्ब के साथ में। मीन यू हैव टू चेंज वर्ब एवरी टाइम। टीच लिया है, लर्न लीजिए, वॉक लीजिए, रन लीजिए, आस्क लीजिए, है ना, और जो भी एक्टिविटी आप डेली करते हो वो एक्टिविटी को लीजिए। आई स्पीक, आई टॉक, आई वॉक, आई स्माइल, आई स्लीप, है ना, ऐसे वर्ब, नई वर्ब्स लेके सेंटेंस बनाइए बेटा अपने, और जितने ज़्यादा बनाइए उतने जितना बना सको उतने बनाइए बेटा। और ये प्रैक्टिस जरूर कीजिए डू आई टीच इंग्लिश हैबिट में लाने के लिए बेटा। मालूम क्यों? डू आई टीचिंग इंग्लिश बोलते कई बच्चे, है ना। ये आपको ये हैबिट में लाना है कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे सब्र करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे कभी कभी हम जब फास्ट बोलते हैं ना पैशन में आकर, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। आई टीचिंग इंग्लिश, आई टीचिंग इंग्लिश क्या होता है? आई एम टीचिंग होगा या आई टीच इंग्लिश होगा? तो पीपल मेक मिस्टेक्स, even sometimes I make mistake, yeah, sometimes experts make mistake of this kind. I belongs to,
एक पिक्चर है पुरानी Belong. अजय देवगन की, और वो है गोलमाल गोलमाल। उसमें एक वसूली भाई होता है, वसूली भाई, Yes sir, yes sir. है ना। तो वसूली भाई की गर्लफ्रेंड होती है, कोई नौकरानी होती है, वो मालूम इंग्लिश कैसे बोलती है? आई लव्स यू, Yes sir, yes sir. आई लव्स यू। तो विच इज मिस्टेक, विच इज फंडामेंटल मिस्टेक। बट यार कॉमेडी, उससे कॉमेडी क्रिएट हो रही तो उन्होंने कर दी मूवी में, तो मूवीज में चल जाता है बेटा। रियल लाइफ में आई लव्स यू नहीं चलता, Yes sir. बॉलीवुड में तो चल जाता है तो। है ना। तो आई टीचेस इंग्लिश नहीं होगा, आई टीचेस इंग्लिश गलत है, वी टीचेस इंग्लिश teach. गलत है। तो आपको ये हैबिट में लाना है बेटा, आप अपनी हैबिट बनाइए, इसको एक रीडिंग दिन की कीजिए और अपनी बनाइए। आई टीच इंग्लिश, तो आई लर्न इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, दे सर लर्न वो इंग्लिश, जैसे पीपल वो लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले क्वेश्चन किए थे ना सर, तो उसमें मतलब ये छोटी छोटी माइनर मिस्टेक इससे पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, पकड़ में नहीं आते थे एकदम पूरा देखे ना अपन सेंटेंस। नहीं देखो, अभी पहले आप इसको देखो, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वो चीज़ अलग है बेटा, वो वाला नहीं ग्रामर। सर, वो उस टाइप के मतलब सर ये टीच वगैरह मैक्स वगैरह इससे मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी सर, वो सॉल्व किए थे। अब वो भी दूर होगी, लेकिन अब वो भी दूर होगी बेटा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो वो दूर हो जाएगा बेटा। यस सर। बहुत सारे सेंटेंस, एरर के सेंटेंस जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिशन में आते हैं, वो आपकी फ्लुएंसी से दूर हो जाते हैं। यस सर। अगर आप सेंटेंस को फ्लुएंटली पढ़ पा रहे हो तो करेक्ट है, अगर फ्लुएंसी में दिक्कत हो रही है तो वो एरर है उसमें। यस सर। यस सर। अगर आपको किसी भी सेंटेंस को फ्लो में पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझना गलती है उसमें, कुछ ना कुछ गलती है। आपका दिल नहीं मानेगा, भले ही सब लोग बोलेंगे, लेकिन आपका दिल नहीं मानेगा, अरे नहीं यार ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। लेकिन उसका क्या उपाय है सर, जिसको सेंटेंस उसका उपाय यही है बेटा कि पहले आप ये प्रैक्टिस करो, ये वाली हैबिट में लाओ पहले इंग्लिश को, इंग्लिश की Yes, हैबिट sir. बनाओ, और फिर ग्रामर के रूल्स है बेटा, रूल्स फॉलो करो ग्रामर के। आपको अपने पता ही 60 से नहीं ज़्यादा सर, रूल मतलब अपन कर कुछ चुके कुछ हैं इस time पे। सेंटेंस सर वो जैसे कॉम्प्रिहेंसिव वाले इस टाइप के होते हैं कि मतलब वो एक बार देख के फिर इसका मीन्स ही ऊपर से निकल जाता है एक बार में। नहीं वो प्रैक्टिस भी करेंगे बेटा, बड़े बड़े सेंटेंस जीमैट लेवल के, कैट लेवल के सॉल्व करेंगे अपन इधर सेम ग्रामर रूल्स पर। यस देखो बड़े सेंटेंस में ग्रामर रूल नहीं होता, ग्रामर रूल कहाँ पे होता है, या तो नाउन में होगा या वर्ब के आसपास नहीं होगा। यस सर। जो एरर होएगी ना, एरर जो या तो एडवर्ब में होएगी, या एडजेक्टिव में होएगी, या प्रीपोजिशन की एरर होएगी, या फिर वर्ब की एरर होएगी, या फिर सिंगुलर प्लूरल की एरर होएगी, बस ज़्यादा एरर नहीं होती। और होगी तो वो इन्फिनिटिव वाली एरर होएगी, पैरेललिज्म वाली। Yes sir. ज़्यादा एरर्स नहीं होती है बेटा, एरर्स को लेके कभी भी डरना नहीं चाहिए इंग्लिश का। तो वो बहुत छोटी है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन आप पहले इसको हैबिट में लाओ, मतलब आपको ये फ्लो में पढ़ना आना चाहिए, फ्लुएंसी आपकी डेवलप होनी चाहिए बस, यस सर। यस सर, ठीक। है ना। अगर आपकी फ्लुएंसी डेवलप हो गई तो आप किसी भी कंपटीशन का इंग्लिश वाला पार्ट इजीली कर लोगे। यस सर। बहुत सारे सेंटेंस से फ्लुएंसी सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है, प्रेजेंट सिंपल कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें मैंने फालतू के जो छोटे मोटे रूल है वो नहीं बताया है, बाकी वो प्रैक्टिस में सारे रूल आ गए हैं कि एस या एस कहाँ लगता है, ही शीट के साथ एस या एस लगता है, आई वी यू दे के साथ सिंपल वर्ब आती है, ही शीट के साथ डज नॉट लगता है, आई वी यू दे के साथ में डू नॉट लगता है। ये सिंपल रूल है, बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी में इसमें ता है, ती है, ते है के वाले वाक्य आते हैं, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, वो मेरे को बताना उचित नहीं लगा था बेटा, मैंने नहीं बताया, क्योंकि आप मास्टर्स लेवल के बच्चे हो, ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हो, आपको मैं तो ना वो पुराना बताऊंगा कि यार इसके वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं। सर बता ही दिया करो आप तो। बता ही दिया ना बेटा, बोल ही दिया ना। हाँ सर भूल गए ना पुरानी बातें तो। पुरानी बातें भूलने में अच्छा है बेटा, भूलने में मजा है पुरानी बातें। नहीं सर, जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जड़ें मजबूत होनी चाहिए, तना भले कमजोर हो। तो जड़ें मजबूत हो तो तना अपने आप मोटा हो जाएगा। नहीं वही तो बोलो, जड़ें मजबूत होनी चाहिए बेटा, है ना। लेकिन जड़ें मजबूत होनी चाहिए, वो मैं समझ गया आपका, लेकिन जड़ें अगर अपन चाहे तो नई जड़ें डेवलप कर सकते हैं बेटा, इंग्लिश की पुरानी डायरेक्ट वाली जगह हटानी पड़ेगी। सर आप तो बता दिया करो छोटे से छोटा रूल भी ना। अरे कोई रूल है ही नहीं, चिंता मत करो आप, कोई रूल नहीं है। ये तो वो प्रैक्टिस करोगे ना आप टीच इंग्लिश वाला, तो इसमें रूल सारे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे आपके।
वैसे भी सर बेटा कंप्लीट आप खुद ही रूल निकालो ना कि भाई आई के साथ आई वी यू के साथ टी जा रहा है, ही शी के साथ एस जुड़ रहा है, तो मतलब ही शी के साथ ऐसे ऐसे जुड़ता है। आप खुद रूल निकाल सकते हो यहाँ से, यस सर, मैं तो ऐसे कह रही हूँ सर। है ना। हाँ। नहीं बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे कह रहे हैं, नहीं बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर थोड़ा सा भी आप इसको देखोगे तो खुद रूल निकाल दोगे बेटा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका Yes, प्रेजेंट ठीक है सिंपल सर। टेंस हो गया। अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अपने सेंटेंस खुद के बनाएंगे इनको यूज़ करते हुए। कल सेंटेंस वाली रख लेते हैं सर। नहीं कल में आगे पढ़ेंगे बेटा, आगे पढ़ेंगे अपन, विल कंटिन्यू अवर सेशंस, टेंस का है। बाकी फिर रक्षाबंधन में 2 दिन की छुट्टी हो जाएगी आपकी, सैटरडे संडे की। मैं सैटरडे को आबू रोड जाऊँगा और संडे को वहाँ से लौट के आऊँगा। सर फ्राइडे को भी कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा, सोच रहा हूँ घर पे जाऊँ। अच्छा फ्राइडे को जा रहे हो क्या घर पे? तो मेरे को बता देना जिस दिन वो कनेक्ट नहीं हो पाऊँ। थर्सडे को भी नहीं हो पाऊंगा सर, वो थोड़ी सी खरीदारी वगैरह। फ्राइडे को तो मैं भी जा रही हूँ घर पे। तो फ्राइडे सैटरडे संडे के अपन छुट्टी कर सर लेंगे बस। थर्सडे को भी नहीं हो पाऊंगा सर, वो शाम को फिर थोड़ी खरीदारी वगैरह। ऐसे बोल रहे पूरा हफ्ता गया है। तो सर, जब मैं तक shift जब पे जब हो गया पाओ हो जाना, जब तक फ्राइडे सैटरडे Yes. संडे अपन कर लेंगे। अबे सर जो सैटरडे उपाय हो संडे को जाना थोड़ी, बोलते हैं। सैटरडे संडे को आ रहा है है। सर। सैटरडे संडे अवेलेबल नहीं हूँ मैं अवेलेबल नहीं हूँ सैटरडे संडे। सर वेडनेसडे तक ही रख लेते हैं सर, फिर एक बार फिर नेक्स्ट वीक कर लेते हैं। ठीक है, वेंसडे कल और पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे बस। Yes. नहीं सर वो ठीक है शाम सर। को मैं तो कहीं नहीं जा रहा सर, मैं तो घर पर ही रहता हूँ। तो तू तुझे प्रैक्टिस कर लेना, तू प्रैक्टिस कर लियो। यस सर, यस सर। तू सिरोही से जयपुर आ जा नितेश। नहीं मैं आऊँगा ना, कॉलेज खुलेगी तब आऊँगा। ठीक तू है। रक्षाबंधन के दिन आ जा, कॉलेज में जाइए तुम। सब बन जाते हैं, मैं वहाँ आऊँगा उल्टा। ठीक है बेटा, तो ना आप इसको थोड़ा एक बार रिवाइज करके देखें और सेंटेंस बनाए अपने जितने ज़्यादा बना सकें। यस सर। कल और कनेक्ट होंगे, उसके बाद अपन मंडे को कनेक्ट होंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है सर। ओके बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट।